Praveen ji and dear students, today we are going to start new classes in the first semester, and on behalf of the department as well as on behalf of the university, I welcome you all to this department. I am Mr. Ramesh Public Administration. You are a student of public administration and you have planned and decided to pursue your PG from this university and opted public administration for PG course. It is yours. And for public administration is concerned, it is good discipline in social science, and it is fruitful in civil services, management, and other field of social work also. It is in very limited university. This subject is taught in very limited university. And we have one university, our Bhimrao University, that provide BA Honors Public Administration as well as MA in Public Administration. And we have modified our course according to UGC regulation, NEP 2020. And you will get the new course structure from this semester. We have finalized the course structure and you will get the new course structure according to NEP 2020, which UGC has provided us. We have permanent three faculty members. Myself, Dr. Vibhuti Narayan, he is taking MA third semester class. Joined recently. He will join the meeting at 11:30. And Dr. Pradeep Singh and two guest faculty. Probably Dr. Anil Prakash and Dr. Praveen. Interview has yet to come conduct. And we have a special guest, Ramesh Mehban sir. He is an assistant professor in Sanskrit and he will guide you some ethical values of the society, because we are in Diksharam Karya. I am head as well as deputy director also. And another responsibility has been given to me. He is chairman anti-ragging squad. So you have to go through the rules and regulations of this university to maintain the discipline of the university, law and order of the university. And if anyone rag you, क्योंकि रैगिंग एक अपराध है, अभिशाप है समाज के। Anyone, if he is trying to rag you, your senior trying to rag you, please inform me. Please inform the committee, factorial board, and don't indulge in any anti-social activity in the campus. This is a request, this is direction of from myself, from my side. You are
came from different parts of the country, you should follow the rules and regulation and fulfill the dreams of your parents and you have dream for yourself. Now I request say something about the department as well as rules. नमस्कार। दीक्षारंभ कार्यक्रम पहले भी होता रहा है, NAP के तहत औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। वैसे हर एक संगठन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जब भी किसी नए सत्र की शुरुआत होती है जो जगह पर स्पेशल होता है वाइस चांसलर या ऐसे और लोग, तो वो दीक्षारंभ का कार्यक्रम किया ठीक है। इसलिए बेटू से पढ़ के आए प्रभाव किसी को पता होगा कि बेटू में विश्वनाथ मंदिर है, तो दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत DC के 12वां पूजन से शुरुआत होती है। तो प्रत्येक संस्था संगठन की अपनी अपनी परंपरा होती है, उसी तरह से इस परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर आपके विभाग में हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने इस विषय को चुना है। थोड़ी देर बाद हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PG करके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्या आजकल जैसा मुख्य मुद्दा है पूरे देश में और मुझे लगता है पूरी दुनिया में है रोजगार, तो लोक प्रशासन कितना रोजगार दे सकता है या दे पाता है, ठीक है, या कौन कौन से अवसर हैं जिन्हें हमको तलाशने की ज़रूरत होती है, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया आपको बता दें विभाग के बारे में। लोक प्रशासन विभाग 2015 से शुरू होता है, इसकी शुरुआत होती है और उस समय से ही UG और PG भी ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 कोर्स शुरू किए जाते हैं। शुरुआती दौर में ये सेल्फ फाइनेंस थे, लेकिन 2017 में इसे रेगुलर कोर्स कर दिया गया। इसलिए आपने 2 तरह का फीस स्ट्रक्चर देखा होगा, एक रेगुलर कोर्स का और एक पेड सीट का। पेड सीट एक तरह से वैश्वीकरण का प्रभाव है, हर संस्थानों को कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है, कुछ मुद्रा कमाना है, ऐसे कह सकते हैं, कुछ आय जुटानी है, इसलिए पेड सीट का प्रोविजन है। तो जितनी रेगुलर सीट होती है उसका 20% अपने यहाँ पेड सीट होता है, जिसकी फीस 17,900 है और आप लोगों से ज़्यादातर लोगों ने 5,400 रुपये जमा किए। कुछ एक लोगों ने 3,900 जमा किए होंगे, ठीक है। SC/ST कैटेगरी जिनकी इनकम 2 लाख से कम है उनको 3,900 फीस। तो आपके से ऐसा कोई हो तो 3,900 रुपये फीस जमा किया हो, उसे जो बैलेंस है अभी का इनकम लेवल ज़्यादा है, बैलेंस आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो गया होगा ऐसा, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसकी जल्दी से आपको देते हैं। विभाग में आज वर्तमान में UG, PG और PhD 3 तरह के कोर्स चल रहे हैं। परमानेंट टीचर की संख्या बहुत कम है, 4 कोर्स सेक्शन है, 3 लोग हैं, एक फिलहाल भरी नहीं जा पाई है। तो ये स्थिति है। हमारे यहाँ लगभग 11 रिसर्च स्कॉलर अभी काम कर रहे हैं। UG की सीट तो हमारी लगभग फुल जाती है, PG में भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। तो ये है विभाग। अभी फिलहाल एक रूम आपके पास यहाँ है और सारे जो क्लासरूम हैं वो बेसमेंट में चलते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बेसमेंट ठंडा जाएगा, गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए बेसमेंट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आई है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी अभी हम लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ किताबें हमारे पास हैं। लाइब्रेरी में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लगभग हर एक टॉपिक पे आपको किताबें मिल जाएंगी और आपकी लिस्ट भेज दी जाएगी लाइब्रेरी को। आपका एक लाइब्रेरी कार्ड बन जाएगा और हर स्टूडेंट को
15 दिन के लिए 2 किताबें इशू की जाती है, मतलब एक साथ 2 बुक्स इशू करा सकते हैं, 15 दिन रख सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कोई आप ले लीजिए, कोई दूसरा को ले ले, ऐसे ऐसे करके एक सेट बना सकते हैं। 3-4 लोग मिल जाएंगे तो आपके जितने पेपर अभी मिलान चलेंगे वो आपका काम हो जाएगा। आजकल जो लोग अलाट हो गया है सिचुएशन जान ही गए होंगे, खाना पीना जैसा भी है तो वो है। लेकिन याद रखिएगा हॉस्टल के खाने से जीवन नहीं चलता है, थोड़ा सा आपको अपने लेवल पर भी सजग रहना पड़ेगा, भोजन और अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये करिएगा। अभी इस सेमेस्टर से जो कोर्स शुरू हो रहा है, अभी इसी सेमेस्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें पहले सेमेस्टर में आपको कुल 5 पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है। एक CBCS है, प्राइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं CBCS। CBCS जो पेपर होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट से लिया जाता है, मतलब पब्लिक के जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस या ऐसा कुछ, मतलब जहाँ लोग आगे ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है वो कोर्स जो है वो PG लेवल का होना चाहिए। इस जिला में LLM में जो CBCS चलता है वो कोर्स आप ले सकते हैं। LLB में जो चलता है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो उसे आप ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में है तो एक पेपर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये काम आज ही कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर किया गया है ग्रुप में, फॉर्म ले लीजिएगा, हर के डिपार्टमेंट से साइन करा लीजिएगा हेड साहब से। कल जमा कर दिया नाम है तो आज कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लंच के बाद कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो CBCS एक पेपर लेना है सबको, तो CBCS आप लोग तत्काल ले लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आपके मनपसंद पेपर होगा, उसका सोशलॉजी मन लग रहा हो और वहाँ आप लेट हो गए तो आपको सीट नहीं मिले, तो आपको ज़बरदस्ती इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना पड़े, तो आप उसके पहले सीट फुल हो जाए, आप और आपके प्रति जो कोई दोस्त है उनको सबको बता दीजिए कि CBCS ले, ठीक है। तो ये वाला काम करेंगे। इस बात से एक नया शुरू किया गया, मूक से एक पेपर पढ़ना है आप सबको, ठीक है। मूक नाम सुना होगा, मूक, स्वयं, NPTEL सुना है। चलो, ऑनलाइन कोर्स है EEC, IGNOU, ठीक है, NITTR, मूक प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लेटफॉर्म, NPTEL, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च होते हैं। तो आपको पूरे 2 सालों में 2 कोर्स 2 पेपर मूक का पढ़ना है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको CBCS अनिवार्य रूप से पढ़ना है, अदर डिपार्टमेंट में पेपर और 4 पेपर, एक पेपर अपने डिपार्टमेंट में, एक पेपर मूक, मतलब ये स्ट्रक्चर है आपका। अभी आपको सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा, स्ट्रक्चर शेयर कर दिया जाएगा। सिलेबस मूक में जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके पेपर रखा है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम करिकुलम का भी पार्ट है, एक पेपर आपको पढ़ना है। अभी जो टीचर पढ़ा रही है वो डॉक्टर मुरली प्रधान है, NITTR इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का, तो वो ऑनलाइन ऑफर करें। उसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। आपको आज ही रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। डिटेल अभी क्लास के बाद के बाद हम लोग आप लोग आएगा तो हम आपको सारा कुछ बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। क्लियर हो? उसका जो एग्ज़ाम होगा मिड से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 2 तरह का है। क्लियर? इंटरनल मतलब जो BBA का कोर्स होता है 70% और 30%। 70% में एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, रिटन लिखा रहता है, 5% करने होते हैं, 8% पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, ये पैटर्न है। 30% में 2 सेगमेंट में बांटा गया है, 20% और 10%। 20% में मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो हम लोग आधा सिलेबस कर लेते हैं तो मिड सेमेस्टर एग्जाम कराएंगे, या यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आता है मिड सेमेस्टर का एग्जाम कराना, जो सीजीबी का जो जरूरत लगेगा वैसे करेंगे। फिर तो 20 मार्क्स का हो गया आपका मिड सेमेस्टर, 10 मार्क्स का प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट या ऐसा कंसर्न टीचर डिसाइड करेगा, उससे कई चीज़ें ये पैटर्न है। लेकिन जो मूक का कोर्स है उसमें 40% आपको इंटरनल मतलब जो कंसर्न टीचर पढ़ा रहा है वो असाइनमेंट देता है, क्विज कराता है, वहाँ से लेके आना है। 60% का इन सेमेस्टर एग्जाम होगा, मतलब 60 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, 40 मार्क्स आप वहाँ से लेके। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है।
मिड सेमेस्टर 40% ले आना अनिवार्य है। अगर आप 40% में फेल होती हैं तो यहाँ पास नहीं होंगे। असगर है उसकी एक ही कंडीशन है कि 40% में, जैसा पासिंग मार्क्स 40% है, 40 का 40 असगर है 40% आपको लाना ही है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा आपसे क्लियर हो गया। तो मूड सबको लेना है, हर एक स्टूडेंट को जो भी इनरोल हो रहे हैं एग्जाम से, और फिर थर्ड सेमेस्टर में मौका आएगा, मतलब पहले सेमेस्टर में और तीसरे सेमेस्टर में मौका रहेगा, पहले और दूसरे सेमेस्टर में CBCS रहेगा। इसके अलावा हर साल जो क्रेडिट सिस्टम है वो लगभग 20 के आसपास है। अच्छा, टोटल क्रेडिट 89 है MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही, क्लैरिटी आ रही, ठीक है। अब थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि आपको रोजगार की क्या संभावना है। सर ने जैसा बताया कि UPSC या सिविल सर्विसेज में आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके दे सकते हैं, वो भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है, वो किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो कई 5-6 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे वो पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स में रिलेटेड है, लॉ से भी रिलेटेड है, और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उन सब से भी रिलेटेड। मतलब ऐसे कह सकते हैं GS का एक ठीक ठाक क्वेश्चन आप, हाँ, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब भी आपको पढ़ना होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो GS का ठीक ठाक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ अभी ऑनलाइन जो आप पेपर मिलेगा आपको 3rd या 4th सेमेस्टर में कि इथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको पता है इससे जो पूछा जाता है वो इथिक्स और वैल्यू से पेपर से भी पूछा जाता है, ठीक है। साइंस वर्सेस वैल्यू, विज्ञान सही है कि मूल्य सही है, इसमें कैसे लिखना है आपको, क्लियर। ऐसे बहुत सारे, तो सिलेबस ठीक ठाक कवर करता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक हो गया UPSC। दूसरा जो बड़ा फील्ड है एकेडमिक है, मतलब आप एकेडमिक फील्ड में नौकरियों के भी चांस बड़े अच्छे होंगे, क्लियर। हाँ, अभी ज़्यादातर जगहों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट या सेंट्रल में नहीं है। कॉलेज कैडर में जैसे हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हरियाणा में कॉलेज कैडर, राजस्थान में 12th तक आ गया, PGT तक आ गया पब्लिक है, क्लियर। मतलब एक डेवलप होता हुआ इस टीम में आगे चलकर हर जगह ये पहुँचना चाहिए। एकेडमिक भी एक फील्ड है, मतलब आप टीचर की जॉब भी कर सकते हैं। एक तो बड़ी अच्छी जॉब आती है वो है मीडिया, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। असल में जो कहा गया उसे मान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि ये क्रिटिकल तरीके से एनालिसिस करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, और सही और गलत, उचित और अनुचित का जो पैरामीटर होता है वो फैक्ट होता है, एविडेंस होता है, ठीक है। तो वो मीडिया का भी एक अच्छा फील्ड है, क्योंकि मीडिया में आपने देखा होगा तो फ्रीलांसर है, यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वही सफल होते हैं जिनके पास एक नॉलेज होता है। किसका नॉलेज होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन सोसाइटी का, इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, इंडियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन पॉलिटी का। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हो सकता है जो रिस्पांस कर रहा है उसके ही सवालों में फंस जाए। ऐसे नहीं, एक अच्छा यूनिट खुल रहा है सोशल मीडिया और अच्छा जा रहा है, ऐसा बुरा नहीं है। बशर्ते अगर आपको ठीक ठाक जानकारी रहेगी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। बहुत सारे करस्पॉन्डेंट को देखा, पत्रकारों को देखा होगा, फ्रीलांसर के रूप में काम किया। आप सुना होगा शुभंकर मिश्र, ठीक है, बहुत पॉपुलर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया, तो ये चलिए अभी जो लेटेस्ट भी है हम लोग की जानकारी में भी है, एक फील्ड है रिसर्च का। रिसर्च एक एकेडमिक फील्ड के लिए और रिसर्च एक कंपनी है, ठीक है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो डेटा कलेक्ट करती हैं कंज्यूमर से, उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ पर डेटाबेसन का एक पेपर होगा, ठीक है, सिनॉप्सिस बनाना है, जो पेपर पब्लिश कराना है, प्रेजेंट करना है, मतलब ठीक ठाक रिसर्च का स्कोप हो चुका है। आज के सेंस में देखा जाए तो 22 क्रेडिट डिवोटेड है रिसर्च के लिए, 44 क्रेडिट जो है वो एकेडमिक के लिए है, और कुछ अदर क्रेडिट है अदर कामों के लिए। एक बड़ा फील्ड है।
जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो जो ये कंपनियां होती हैं खासकर सर्वे कराने वाली, पॉलिटिकल इशू पे सर्वे कराने वाली, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाली, कैसे कैंडिडेट को कहाँ उतारा जाए, ठीक है, वहाँ का सर्वे कराना, वहाँ का डेटा कलेक्ट करना, तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। मैंने ये देखा है कि जो टॉप 10 कंपनियां हैं, जैसे आईपैड का नाम सुना होगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पब्लिक करके काम करें। ज़रूरत क्या है कि हमें उनके अनुसार थोड़ा ट्यून होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कैसे कंडक्ट होता है, कैसे क्वेश्चनायर इंटरव्यू शेड्यूल बनाया जाता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे सही डेटा कलेक्ट किया जाता है। बस हमारे डेटा महत्वपूर्ण नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, डेटा शुड बी रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। थर्ड एसी में अगर डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, और जनरल मूवी में डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग आएगा। और जनरल होना ज़्यादातर समाज के नज़दीक, बस हमारे आप अपनी सुविधा के अनुसार डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा गलत आएगा, ठीक है। आप डेटा की रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा अलग आता है, बस हमारे। इसीलिए ज़्यादातर जो प्री पोल और पोस्ट पोल सर्वे आते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण है उन्होंने सैंपलिंग ठीक नहीं किया, मतलब जिन लोगों से बात करने की ज़रूरत थी, जिन लोगों तक पहुंचना था, वो पहुंचे ही नहीं। इससे ले लिए जो बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता बाजार में नहीं होती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं होती, ठीक है। असलन आम जनता कहाँ होती है, बाजार में। कौन सा बाजार, ग्रामीण क्षेत्र के बाजार में। असलन क्लियर हो रहा, एक बड़ा फील्ड है, बड़ा अच्छा फील्ड है, और इसमें बहुत सारे बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास भी रहेगा कि आगे चल के ऐसी कुछ कंपनियों के चीफ ऑफिसर हैं जो चलाते हैं ऐसी कंपनियां, उनको बुलाना, उसे लेक्चर दिलवाना, ताकि आपका भी एक मोटिवेशन हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी किया जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आज ये मानता हूँ कि अगर आपको बढ़िया से काम करना और अच्छा सैलरी पाना, अच्छा पैसा कमाना है, अपने आप को स्थित करिए और प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उससे बेहतर और कहीं नहीं है। कि गवर्नमेंट सेक्टर की एक सैलरी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा सैलरी मिलनी नहीं है आपको, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि सैलरी जो है वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके काम पर डिपेंड करता है। तो एक एक पत्रकार है जो साल के 5-5, 7-7 करोड़ रुपये कमाते हैं, और एक टीचर उतना शायद ही सैलरी पाए। बस हमारे व्यक्तिगत तौर। दूसरी चीज़ ये है कि आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियों की संख्या है वो लगातार घटेगी, ये निश्चित प्रभाव है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दी जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दी जाएगी, स्वाभाविक है नौकरी आपको कॉन्ट्रैक्ट में चली गई, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र, हासिल आ रही, तो इससे बेहतर है कि हम बेटर फील्ड में जाएँ। तो ये ऐसा भी एक अच्छा उपाय है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जहाँ भी जाना है एक अपना माइंड में तय कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसके अनुसार उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करिए, ठीक है। ये पीजी प्रोग्राम जो होता है कई चीज़ों को एक साथ डेवलप करता है, एकेडमिक तो डेवलप होता ही है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये 2 साल ही तय कर देगा कि आपकी दिशा क्या हो, मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। एंटी रैगिंग को बस 2 मिनट में हम बात करेंगे। एंटी रैगिंग किसी का नहीं किया जा सकता आज के संदर्भ में, क्लियर हो गया। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास करेंगे, वैसे आप ज़्यादातर लोग जानते हैं रैगिंग, एंटी रैगिंग, ठीक है। तो आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, वो सीनियर करे, वो जूनियर करे, कुछ जूनियर जैसे BS6 के बच्चे होते हैं तो यहाँ से तरजीह है, आप नए आ रहे हैं तो वो भी रैगिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जूनियर ही करे, सीनियर ही करे, जूनियर भी कर सकता है। तो आप थोड़ा अलर्ट मोड में रहेगा। ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, बेझिझक, हम 3 टीचर हैं, 2 और लोग टीचर हैं, ठीक है, इन 5 से, ऑफिस से, स्टाफ से, किसी से भी बेझिझक कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए। मान लीजिए फ़ोन नहीं उठा, आपसे बात नहीं हो पाई, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि मैं इस कोर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। वास्तव में कोशिश करेगा, और जैसा सर ने कहा, देखिए क्या जीवन आपका है, इसको दिशा देना भी आप ही का काम है, ठीक है।
और आपको हमेशा पता है कि आज भी भारत में छात्र आंदोलन चल रहे हैं, आज दुनिया भर के आंदोलन हर जगह हमेशा चलते हैं। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि सरकारों से जो अपेक्षा है और जो आपूर्ति है, दोनों में एक मिसमैच है, एक गैप है। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप भारत सरकार में चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी को ले आ दीजिए, सबकी स्थिति कम हो बेश हो जाएगी। कारण सरकारी क्षेत्र में रोजगार लगातार घट रहे हैं। तो चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी, हम तो कह रहे कम्युनिस्ट पार्टी आप इंडिया को बता दीजिए सरकार, और रोजगार दे के दिखाए नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपने मॉडल एडाप्ट किया है, ठीक है, उस मॉडल में रोजगार सृजन अब निजी क्षेत्र का काम है, पब्लिक सेक्टर में काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये मॉडल है, तो इसमें आप कोशिश करिएगा। छात्र राजनीति जरूरी है, लेकिन लिमिट, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि आप सोच करने के इरादे से नहीं, वीडियो नहीं, ठीक है, लेकिन आप वीडियो में सबसे ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा। क्लियर? तो बात समझिए।